Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. As IBPS RRB officer and IBPS RRB office assistant, main date was postponed from this month for a further period. We are not sure when these examination will happen, but we can expect that these examination may happen in the month of November or at the most by middle of December. So we have to focus on all the five main examination that is our way. One is RBI assistant, date is already announced 22nd November. Then IBPS PO, date is already fixed. Then SBI Junior Associate, for which we may know the date shortly. Then IBPS RRB main and IBPS RRB office assistant main. Now there are certain common things in all the five examinations. So few days we will spend on consolidation on common things so that the knowledge acquired may help us to cover all these papers as and when they happen. So the first thing that we will cover is the current affairs today. Again, today you will not attempt any mock test. So we will have freedom from mock test for few days. And after this freedom, we will then start focusing on our subjects that gives us consolidation, gives us knowledge that is useful in clearing the examination. So first thing is current affair. For 1 hour, you will spend current affairs today. For your benefit, I have already identified a very good source of current affairs where all the news is placed at one place. And this news will help you to perform well in the examination. Because I have seen people, they are wasting a lot of time in reading the newspapers. I have seen many people, they read everything that comes their way, although it is not arranged in a proper manner, and it wastes their time. They are tempted that it is a free content. They may be tempted as it is available in some group. They may be tempted somebody has shared something with them. But it is just waste of time. If you want to prepare current affair, you have to study current affair in a systematic manner, month-wise, from a good source. Sometimes saving a small money can cost you a job for 1 year. If you get the job early, you are gaining 4 lakhs, 5 lakhs rupees per annum. But you will start saving the money just that I have to purchase a current affairs source. I can save 350 rupees. You are putting a lot of stake on your shoulders. So I simply advise 1 rupee per day is not such a burden that one should avoid. We should lay hand on a good source. The link of this source is available in description and comment column. Do subscribe this current affairs source and start reading from monthly PDFs. After 1 hour spending on current affair, take rest of half an hour. Now come to banking. Many people, they miss in mains because they are weak in banking. They are unable to understand why they are clearing prim again and failing in mains. In mains, the conceptual knowledge of banking is very crucial. Many questions comes there, and if you are able to answer them correctly, you are ahead of your competitors. So for your benefit, I have created more than 190 videos. Those are exam oriented, simple language, and can help you to get these additional marks. This is available free of cost. Usually such type of courses may cost you 2000 rupees, 5000 rupees, but this is available free of cost at this channel. So watch 10 videos in 1 hour. Then take half an hour rest. Then you must know the news around you regarding economic, financial and banking world. So I have given you 3 playlists, that is July 2020, August 2020, September 2020. From today onwards, you will have a playlist of October 2020 also. So the link of 3 playlists I have given you in description. Spend 1 hour
and watch 5 videos today. So this should be your schedule. Then again 1 hour on current affairs, half an hour rest. 1 hour on banking awareness videos, half an hour rest. 1 hour on news videos, half an hour rest. Again 1 hour on current affairs, and so on. So go on repeating this schedule today. So today focus is only general awareness paper. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. अब हमारा IBPS RRB ऑफिसर और IBPS RRB ऑफिस असिस्टेंट के जो एग्जाम इस मंथ में शेड्यूल थे वो पोस्टपोन हो चुके हैं. नई डेट्स अभी अनाउंस नहीं हुई है. तो मेरा मानना ये है कि नवंबर और दिसंबर मिडल तक ये आपके 5 एग्जाम हो जाएंगे जो पेंडिंग है. एक है SBI जूनियर एसोसिएट मेन. इसकी डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है. डेट की घोषणा हो जाएगी रिजल्ट की घोषणा के साथ. तो हम इसको नवंबर दिसंबर सेकेंड वीक तक उम्मीद कर सकते हैं ये एग्ज़ाम हमारा हो जाए. इसके बाद RBI असिस्टेंट की डेट ऑलरेडी 22 नवंबर आ चुकी है. इसके अलावा IBPS RRB ऑफिस असिस्टेंट और IBPS RRB ऑफिसर की डेट भी आ जाएगी. और IBPS PO की ऑलरेडी निर्धारित डेट है. दैट मीन्स इन 5 एग्ज़ाम में से 2 की डेट ऑलरेडी डिसाइडेड है, 3 की डेट हमें जल्दी ही मिल जाएगी. मेरा मानना यह है 15 दिसंबर तक ये 5 एग्ज़ाम आपके हो जाने चाहिए अगर सब चीज़ें ठीक चलती हैं तो. मगर हमें अपनी पढ़ाई जारी रखनी चाहिए, क्योंकि जो भी डेट आएगी जो इस पीरियड की हमारी पढ़ाई है वो उसमें काम आने वाली है, क्योंकि ये तो हमें पढ़ना ही होगा. तो आज भी हम कोई मॉक टेस्ट नहीं करेंगे. अभी हम मॉक टेस्ट से थोड़ी फ्रीडम रखेंगे कुछ दिन के लिए, ताकि हमारे जो बाकी सब्जेक्ट हैं जो कॉमन है वो कंसोलिडेट हो जाए. तो आज भी हमारा फोकस जनरल अवेयरनेस पे रहेगा. जनरल अवेयरनेस पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया है करंट अफेयर्स. अब अधिकांश लोग क्या गलती करते हैं, कहते हैं सर मैं प्री मैंने पास कर लिया, मेन मेरा फेल हो गया. क्यों हो गया? क्योंकि आपका तरीका गलत है. करंट अफेयर के लिए जहाँ भी मटेरियल मिला पढ़ना शुरू कर दिया, अखबारों के अंदर टाइम लगाना शुरू कर दिया, किसी भी ग्रुप में कोई करंट अफेयर की न्यूज़ आ गई उसको पढ़ना शुरू कर दिया. ये टाइम वेस्टेज है. करंट अफेयर का आपका एक सिस्टमेटिक वे होना चाहिए कि मुझे इतने महीने की न्यूज़ कवर करनी है और एक अच्छे सोर्स से करनी है, जहां मैं सिस्टमेटिक एक करके न्यूज़ को पढ़ सकूं. मैंने आपके लिए अच्छा सोर्स ढूंढ के दे दिया. लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट कॉलम में दे दिया. हजारों लोगों ने उसको सब्सक्राइब भी कर लिया. आपने नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लो. कई बार क्या होता है, जो कच्चा लालच होता है हमारा कि ये 300-350 रुपये हम बचा लें, शायद फ़ायदा हो जाए, फ्री में सब चीज़ मिल रही है. पर ये जो 300-350 हम बचाते हैं, कई बार हमें 4 लाख 5 लाख 6 लाख पर एनम की नौकरी हमारी हाथ से निकल जाती है. और जो लोग ये पैसा खर्च कर लेते हैं और उसको किसी तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं वो फ़ायदे में रहते हैं. कुछ लोग हो सकता है कि उनकी अफोर्डेबिलिटी कम हो, वो भी और लोगों का सहारा लेके इसको करें. ये नेसेसरी एक्सपेंसेस हैं. 1 रुपया पर डे अगर एक्सपेंसेस करके हमारा भविष्य बन सकता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है. कई लोगों को लगता है कि हर चीज़ फ्री मिल जानी चाहिए, उसी से हमारा भला होगा. ऐसा होता नहीं है. ज़िंदगी के अंदर हमें फैसला करना होता है क्या चीज़ हमें पैसे खर्च करके लेनी है और कौन सी चीज़ हमें फ्री मिल रही है. सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, ये मान के चलिए आप. सच्चाई है ज़िंदगी की. तो जीवन के अंदर जितनी जल्दी हम सच्चाई का सामना करते हैं हम उतने कामयाब होते हैं. एक आपको बहुत ही अच्छा सोर्स मैंने बता दिया, इसको आपको लेना चाहिए, ये मेरी सलाह है. बाकी आपकी मर्जी है. कुछ लोग पहली बार में कहना मान लेते हैं, कुछ लोग फेल होने के बाद मानते हैं, कुछ लोग 4-5 साल धक्के खाने के बाद मानते हैं. ये हर आदमी की अपनी अपनी फितरत होती है. पर जो जितना जल्दी किसी का कहना मानते हैं वो फ़ायदे में रहते हैं, क्योंकि हज़ारों की तादाद में हमारे चैनल सब्सक्राइबर बेनिफिटेड हुए हैं जिन्होंने कहना माना है. बहुत ऐसे भी हैं, आते हैं सुनते हैं चले जाते हैं, नहीं मानते, उनकी मर्जी है, क्योंकि सबको तो वैसे भी नौकरी नहीं मिल रही है. पर जो ओबीडियंट होंगे, जो कहना मानेंगे, एक्सपीरियंस की वैल्यू करेंगे, उनको डेफिनेटली फ़ायदा होगा. सोर्स मैंने आपको बता दिया है, उसको आप ले लीजिए. 1 घंटा आप करंट अफेयर पे लगाइए. जो मंथली PDF है वहाँ से सिस्टमेटिक वे से पढ़ना शुरू करिए. आधे घंटे का रेस्ट करिए. फिर जो लोग लगातार फेल होते हैं मेन में जाके, उनमें सबसे बड़ी कमी ये होती है कि उनको बैंकिंग फाइनेंस की नॉलेज नहीं होती. और ये नंबर बहुत मैटर करते हैं आपकी मेन की सिलेक्शन के अंदर,
क्योंकि अधिकांश लोग जो फेल होते हैं वो जनरल अवेयरनेस पेपर की वजह से होते हैं या इंग्लिश पेपर की वजह से होते हैं। अगर इन दो पेपर को हम फोकस में ले लेते हैं, क्योंकि जो प्रीम पास कर रहा है उसका पक्का है कि उसका रीजनिंग और क्वांट अच्छा ही है, क्योंकि जो आपका प्री का पेपर है उसके अंदर इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग है। तो जिसका क्वांट रीजनिंग अच्छा है वो प्री पास कर पा रहा है। अब फर्क क्या पड़ रहा है मेन के अंदर, एक नया सब्जेक्ट जुड़ रहा है जो है जनरल नॉलेज। अब अगर 10 लोग पास हुए हैं और एक का जनरल नॉलेज अच्छा है और 9 का वीक है, तो जो एक अच्छा है वो इसको निकाल के ले जाएगा। तो ये बात हमें समझने की है कि जो पहला फेज था उसमें जो कॉमन पेपर थे, अगर हम उसमें अच्छे हैं तो मेरे कंपटीटर भी उसमें अच्छे हैं। बट जो चीज़ फर्स्ट फेज में नहीं थी, अगर हम उसमें अच्छे हैं तो हम औरों से आगे निकल सकते हैं। इसीलिए इस पेपर की इम्पोर्टेंस है, इसीलिए पिछले 2 दिन से हम फोकस कर रहे हैं इसके ऊपर। तो बैंकिंग की नॉलेज के लिए मैंने आपको 190 वीडियोस बना दिए 3 साल की मेहनत करके। 10 वीडियोस आप देखिए 1 घंटा लगा के, फिर आधे घंटे का रेस्ट कर लीजिए। फिर आपको न्यूज़ पता होनी चाहिए बैंकिंग, फाइनेंस, इकोनॉमिक वर्ल्ड में क्या हो रहा है मेरे आसपास। उसकी मैंने 3 प्लेलिस्ट दे दी आपको, जुलाई 20 की, अगस्त 20 की और सितंबर 20 की। 5 वीडियोस, 10 वीडियोस 1 घंटा लगा के उसमें से देख लीजिए। फिर यही रूटीन दोबारा रिपीट करेंगे आप। 1 घंटा करंट अफेयर्स, आधे घंटे का रेस्ट, 1 घंटा बैंकिंग अवेयरनेस की वीडियो, आधे घंटे का रेस्ट, 1 घंटा करंट न्यूज़ की वीडियोस, आधे घंटे का रेस्ट, फिर 1 घंटा करंट अफेयर, आधा घंटा रेस्ट, 1 घंटा बैंकिंग अवेयरनेस वीडियो, आधा घंटा रेस्ट, 1 घंटा न्यूज़ वीडियोस, आधा घंटा रेस्ट। ये शेड्यूल अगर आपने फॉलो कर लिया तो आप बहुत लोगों से बहुत आगे निकल जाएंगे। देखो, प्री में आप सब बराबर हैं। अगर आपका मैथ्स अच्छा है, आपका रीजनिंग अच्छा है और इंग्लिश सो है, आपका प्री निकल जाता है। पर मेन के अंदर आपको क्या चीज़ लीड दिलाती है जो औरों के पास नहीं है, आपके पास है? वो क्या है? जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस के मार्क्स। इसको फोकस करना निहायत जरूरी है, क्योंकि अब गिने चुने लोगों में से आपको गिने चुने लोगों में आना है। मीन्स हजारों में से, लाखों में से हजारों में आप आ चुके हो। अब इन हजारों में से उतने लोगों में आना है जितनी वैकेंसीज है। तो यहाँ आपका लीड होनी चाहिए औरों के ऊपर, और वो आपकी बनेगी जनरल अवेयरनेस पेपर से, इंग्लिश के पेपर से। आने वाले दिनों में हम इंग्लिश पे भी अभी फोकस करेंगे, कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। कल हमने जनरल अवेयरनेस पे फोकस किया, आज हम फिर जनरल अवेयरनेस पे फोकस करेंगे। डिस्क्रिप्टिव में कैसे नंबर लेने हैं वो मैंने आपको परसों वीडियो डाली थी, उसको आप ध्यान से देखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।